Hello guys, welcome back to my channel GravityTech. This is the next video on C programming series. This series will help you to learn complete C programming course with proper examples and in very simple and easy language and in very minimal time. In last video we saw one dimension array, and in this video we will continue with the next topics. So guys, if you haven't watched the earlier videos, I strongly recommend you to go through those videos to learn the topics covered until now. Okay, now in this video, we will look at the two-dimensional arrays, three-dimensional arrays, n-dimensional arrays, strings, and then what exactly are you going to cover as a part of next topics. Now, in the last video, we already saw single dimension array. This is a quick recap on it. So let's have a quick recap on what has already been covered on single dimension array. Single dimension array means it's an array with only one dimension. Okay, it's an array with only one dimension. Means only one row. It means only one row, and you can have any number of elements in that row. So in this array there are like 10 elements they have. Okay, now single dimension arrays declaration involves data type of the array. Like this is a data type of what type of elements the array is going to store, the array name, what exactly the name has to be given to the memory location so that it can be used in the programming language, and the dimension of the array, like how many number of elements, that's what we call it as size, right? How many number of elements are going to be stored in the particular array. Okay, now in this case, what exactly this is, when we say int marks 10, then this is basically marks is an array of 10 integers. Okay, that means in a memory marks will have allocation for 10 integers in a consecutive location. एक के बाद एक location रहेगा. Okay, those will not be scattered. So array index always starts with where 0 and ends with n minus 1. अगर इस array में 10 elements है तो ये 1 से शुरू नहीं होगा. इसका index जो है, मतलब जैसे हम number बोलते हैं, इस एलिमेंट का नंबर है 0, इस एलिमेंट का नंबर है 1. सिमिलरली, सो द लास्ट एलिमेंट का नंबर जो रहेगा n minus 1, यहाँ पे 10 है, so that will be 10 minus 1, that is 9. Okay, so if you want to access the fifth element of the array, if you want to access fifth element of the array, see, I am basically referring these are the indices, index, and when I say element, I am referring the actual values, right? When I say fifth element, that means 1 2 3 4 5, this element, but it is of index what, 4 only, remember. So array elements are accessed using the subscript. Means if you want to access the fifth element in the marks array, what you basically need to do, you just need to write marks and then inside a square bracket 4. That will basically give you the fifth element of the array, right? This marks array. Now let's go to the next slide to learn what are the double or two-dimensional arrays. So to give you an idea what exactly the two-dimensional arrays are, do you know the matrix in mathematics? आपने कभी matrix देखा है mathematics में? If not, then matrix is a mathematical object which has some defined number of rows and defined number of columns. So अगर आप यहाँ पे देखोगे एक matrix है. This matrix has 3 rows, 1 2 3, and then it has 4 columns. Correct. So this is a matrix of size 3 by 4. Correct. This is a matrix of size 3 by 4. So if matrix of m number of rows and n number of columns, we call it as a m cross n dimension matrix. That is what m by n matrix. So if the matrix you see in this slide is what, having 3 rows and 4 columns. Okay. Now what does that mean? It has 2 dimensions.
What are those dimensions? Rows is one dimension and the columns is another dimension. So if you think, there are actually three arrays here. ये वाला एक array है, then ये दूसरा वाला array है, then तीसरा वाला array. This is basically arrays of arrays, is it? So these are arrays of arrays. That's why there are two dimensions. So arrays of arrays are two dimensional. Similarly, if you want three dimensional, so it will be arrays of arrays of arrays. Four dimensional arrays of arrays of arrays of arrays. Similarly, the n dimensions as well, right? So now just think of, you want to store matrix programmatically. आपको अभी programmatically matrix को store करना है. How will you do that then? So the question is what to do to store all rows, and each row must have many columns, right? All rows and each row basically must have the many columns. How to achieve that? So in this particular case, we have three rows and four columns, and each element is going to be, let's say, integer. So we would basically declare it like this. So we will say matrix is a two-dimensional array. Why two-dimensional? Do you see? So this says one dimension and this is two dimensions, right? Number of rows and four number of columns. Okay. So matrix is an array with three rows and four columns, and all it will basically store integers. So matrix में कितने एलिमेंट आएंगे? 3 into 4. See, एक रो में 4 elements, right? So 3 rows में कितने आएंगे? 12. So this will have 3 into 4 elements in it. So this is a two-dimensional array declaration. इस तरह से आपको two-dimensional array declare करना है. तो number of rows and then number of columns. So if you look at this example, this is a simple 3 by 3 matrix. So अगर आपको इस मैट्रिक्स को प्रोग्रामेटिकली डिक्लेयर करना है तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे? int matrix, there are three rows, okay, and then there are three columns. So that will be int matrix 3 3. Okay, this declaration I have used with reference of this matrix. Okay, now अब ये मेमोरी लोकेशन में किस तरह से स्टोर होता है? इट इज सिंपल. This is just a user view. See, this is just a user view. लेकिन in a memory एक continuous location में ही रहता है. Okay, so अगर इसका एड्रेस है 4000 इसका एड्रेस आएगा 4004, इसका एड्रेस आएगा 4008, इसका एड्रेस आएगा 4012, 4016, 4020, 4024 and so on. So all these elements will basically be stored sequentially. So in a memory, कंप्यूटर को इस तरह का प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता है. कंप्यूटर में मेमोरी में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहेगा. दिस इज समथिंग इज मेड फॉर यूजर. ओके, ये हमको समझने के लिए कि भाई नहीं, इसमें 3 रोज होनी चाहिए, 4 कॉलम्स होनी चाहिए. गॉट इट? सो दैट्स हाउ द टू डायमेंशनल एरे इज. Now we will see some practical points. How to declare the two-dimensional arrays, how to initialize it, how to access the elements of two-dimensional array, how to insert the data in two-dimensional array, how to read and access those the elements from the two-dimensional arrays, right? Let's go back to the IDE and see what exactly the practical examples. So to save some time, I have actually tried to put it something everything, right? So what let's maybe do one thing. Okay, I will just comment out everything first, then we'll go through one by one. Yeah. So the very first thing, how to declare the two-dimensional array, right? This we already saw. ये हमने already देखा है कि अगर हमको एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करना है 3/4 का तो हम इस तरह से लिखेंगे. अगर हमको m/n का करना है तो दिस विल बी m, दिस विल बी n. तो अभी यहाँ पे क्या रहेगा? इनिशियलाइज अगर हमको करना है, हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, लेट्स से, राइट, 2 5 -3. इसको इनिशियलाइज कैसे करना है?
Now we don't want this we already saw, right? We don't want really this one. Correct. Now we want a 3 by 3 matrix, let's say. Now this is a 3 by 3 matrix. So 3 by 3 matrix में हमको how many rows we have? 3 rows. So see, one row, second row, third row. आपने सेट्स स्टडी किया होगा, सेट्स का सेट्स सिमिलर तरीके से यही भी है, राइट? सी, सो देर आर 3 rows, सो one row, second row, third row. नाउ देयर कम्स कॉलम्स कि हर एक रो में 3 कॉलम्स रहेंगे. सो ये फर्स्ट रो का 3 कॉलम्स, सेकंड रो के 3 कॉलम्स, थर्ड रो के 3 कॉलम्स. सो you would basically say this as what? A11, A12, A13. So the first element of first row and first column, first row, second column, first row, third column element. This you can suppose as A21. Mathematically, I'm talking about mathematically. Okay, we are still maybe not looking at programmatically. So second row, first column, second row, second column, second row, third column. That's how we refer it in mathematics matrices, right? This is going to be 3 1, this is going to be 3 2, and this is going to be 3 3. Got it? So this is how you should basically write the two dimensional arrays, initialize the two dimensional arrays. अब इसको एक्सेस कैसे करना है? अगर आपको ये टू एलिमेंट एक्सेस करना है, so how would you basically access it? You will simply access it what? The matrix name, right? लेकिन so यहाँ पे programmatically this is not a zero first, right? The index starts from 0. So this will be 0th row, this will be first row, and this will be second row. So this will be second row, this will be second row, this will be first row, this will be first row, this will be what? 0th row, and this will be 0th row. Similarly, columns as well, right? Those will not basically start with the one index. So it will be 0th index, one index, and two index. So two index, one index, one index, zero index, and zero index. So what does that mean, right? See, अगर आपको 7 एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलना चाहिए? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. So that means how would you access that matrix, right? Of, let's maybe try to print it right here. See, let me just try to print tab. I'll have some tabs there, right? So %d, I'm just trying to print it matrix. So I want to print 7. 7 कौन सा है? First row में first column. So it should be what? First row and then first column. See, so matrix का first row का first column will basically be a 7. So if you look at here, the answer is going to be a 7. See, is it? Now let's say if you want to print 2. 2 means what? 0th row and 0th column. So this simply should be what? 0th row and 0th column. So when you print this, it will basically give you 2. Correct? So what if you want to print -1? So -1 कौन से रो में है? 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो में है और 0th कॉलम में है. So this should be what? Second row and 0th column. Correct? So when you run it, it will basically give you -1. So this is how you can access the matrix elements. Got it? So matrix double dimension array जो होता है उसमें दो dimensions होते हैं, rows and columns. Okay? So इसमें तीन array आएंगे. Each array will have the 3 elements. So if you simply want to print the complete array, तो वो कैसे करना है? अभी देखो, अगर हमको एक array अगर प्रिंट करना होता तो हम क्या करते? जस्ट इस पे एक फॉर लूप लगा देते. लेकिन हमको नंबर ऑफ रोज पहले
इटरेट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स इटरेट करने, करेक्ट। सो हम पहले क्या करेंगे, सो लेट्स मे बी ट्राई टू पुट समथिंग some like kind of pseudo code, right? For row is equal to 0, print. So for row is equal to 0, print first element, correct? Then print second element, then print third element, correct? Then third element. So similarly, the same thing will be for row 1, print first, second and third element, ये वाला, right? Then similarly for next row, ये इस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है कि आपको अगर प्रिंट करना है पूरा का पूरा तो कैसे प्रिंट करोगे आप। सो फॉर रो नंबर 2, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड। अभी देखिए आप, ये वाला जो चीज है ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, सेम काइंड ऑफ लूप रहेगा। तो हमको पता है कि इसके लिए एक लूप लगेगा, लेकिन रोज जो है, नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, ये भी रोज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो गए। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। सो ये रोज इटरेट करने के लिए हमको एक फॉर लूप लगेगा, और हर एक उस फॉर लूप के अंदर हमको उस पर्टिकुलर रो का जो एरे रहेगा उसको इटरेट करने के लिए वी विल नीड अनदर फॉर लूप। सो to go through number of rows we will need one for loop, and inside that for loop to go through each row elements we will need another for loop. So the for loop should be here like this, right? So you should basically try to write like this: for starting row from 0 when rows are less than 3, row plus plus. So this means it will basically iterate through first 0, row number 0, row number 1, row number 2, row number 3. Okay. Now once row is equal to 0, when row will be 0, then it has to print these 3 elements. So to print these 3 elements, we will actually have for loop for column is equal to 0, column is less than 3, column plus plus, correct? And then we will say printf. Let's maybe try to put it like simply as it is, %d, right? And then matrix of row and matrix of column, correct? Now instead of using the next code, let's use this code only which I just wrote. So what I'm saying, we will not basically use maybe this code. Yeah. So let's use now this code only. Do we have anything? No, not down anything. Yeah, let's use this code. But see, we are using row and we are using column. Did we declare those? हमको उसको declare करना पड़ेगा पहले. So int row and int column हम लोगों ने इसको declare कर दिया. अभी देखो, अगर ये प्रिंट करेगा तो पूरा ये पूरे के पूरे 9 के 9 एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए. Now let's try to print it and see what exactly the values we have. See, उसने प्रिंट किया 2 -5 3 0 7 -1 -1 4 1. लेकिन ऐसे क्यों प्रिंट किया? वेल फॉर्मेटेड, जहां इस तरह से जो दिख रहा है वैसे क्यों नहीं प्रिंट किया? बिकॉज वी डिड नॉट फॉर्मेट द आउटपुट. डिड वी फॉर्मेट द आउटपुट? हम लोगों ने इसको फॉर्मेट नहीं किया है. तो इसको फॉर्मेट करने के लिए हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो हर एक रो नए लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, राइट? सो रो कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से चालू हो रहा है रो. सो वी शुड बेसिकली हैव अ न्यू लाइन हियर, करेक्ट? सो हर एक के बाद हम एक न्यू लाइन लिख देते हैं. व्हेन वी राइट अ न्यू लाइन it will be like this. Now see,
अभी हर एक रो तो आगे आ गया, 2 आया, -5 3 0 7 -1 -1 4 1, बट वाई देर आर नोट्स नो स्पेसेस, राइट? क्योंकि हमने उसको फॉर्मेट नहीं किया। जब हम कॉलम के एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं तो वहां पे हमको कुछ लिखना चाहिए। सो लेट्स हैव अ टैब, राइट? तो टैब का मतलब क्या है कि हर लास्ट का एलिमेंट जो प्रिंट हुआ है उस पे एक टैब आ जाएगा। नाउ सी, डू यू सी द वेल फॉर्मेटेड आउटपुट नाउ? जिस तरह से हमको मैट्रिक्स चाहिए था उस तरह से अच्छे से प्रिंट हो गया अभी। 2 -5 3 0 7 -1 -1 4 1। So guys, you need to basically format the output correctly, use the uh, रो नंबर कॉलम नंबर्स अप्रोप्रिएटली। इसे बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स। इसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, जो कंसेप्ट हमने फॉर लूप में कवर नहीं किया था, राइट? एंड आई प्रॉमिस्ड टू कवर दैट कंसेप्ट इनटू द 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरेज। सो मैंने अभी ये कवर कर दिया। ओके, सो व्हेन यू राइट अ लूप इनसाइड अ लूप, you basically say that that concept is known as what? Nested loops. Okay, easy. So इस तरह से आप एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ये वाला जो है दैट इज सेम थिंग आई जस्ट यूज हियर आई एंड जे। ओके, नाउ हाउ यू कैन मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द array, right? How you can modify the elements of array. Now let's say somehow the matrix, right, 1 and 2 जो है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, मुझे 8 चाहिए था। फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम है मुझे क्या चाहिए? 8, लेकिन अभी क्या है? 4। सो इफ आई जस्ट मे बी ट्राई टू प्रिंट दैट, वो मुझे इस तरह से दे देगा। लेकिन मुझे 8 चाहिए तो मैं कैसे चेंज करूंगा? आई विल जस्ट सिंपली से मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 8 बना दो। तो यहाँ पे वो मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, और जब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा इट विल बेसिकली गिव मी दैट वैल्यू। सी, जो फर्स्ट 3 आर लाइक जो पहले न्यू वैल्यू के पहले चेंज किया हम लोगों ने, राइट? And then this is what the new value के बाद में change किया। I am saying the first row and the second column, that is 8, changed. Yes, it is changed, right? So that's how you can basically modify the existing elements of an array. Now, how you can basically read and accept elements from the user? अभी मुझे user से element लेने हैं। Let me just maybe comment out the first part which we are using to print it, or maybe later rather let's keep it as is, right? सो इन स्टेट हम क्या करेंगे? जो अभी का एलिमेंट्स है वैसे के वैसे रखेंगे, और बाद में यूजर से और एलिमेंट्स लेंगे और वो वहां पे अपडेट कर देंगे, और फिर नया वाला मैट्रिक्स प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कि वेदर इट इज गिविंग अस द प्रॉपर वैल्यूज और नॉट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक नेस्टेड लूप ले लिया है। फॉर लूप नंबर ऑफ रोज, फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड देन स्कैनएप। स्कैनएप मतलब क्या है कि यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं। जो भी यूजर से इनपुट लेंगे वो एड्रेस में जाएगा। किसके एड्रेस में जाएगा? मैट्रिक्स आईजे के। आईजे मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस मैट्रिक्स का, करेक्ट? सो हियर वी आर गिविंग अ मैसेज टू द यूजर कि उसको क्या करना है। हम यूजर को बता रहे कि भाई इंटर द 3 एलिमेंट्स इन %d रो। हम उस रो में डालने के लिए पर्टिकुलर 3 एलिमेंट्स इंटर कीजिए, राइट? सो लेट्स मे बी ट्राई टू रन इट। सो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, राइट, सी, ये जो पहले आउटपुट आया हुआ है, ये आउटपुट क्या है कि जो हमारा ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है। अभी हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं विद द न्यू वन। Let's say now I am entering -8, 7, -20 is the first row. Second row के elements, let's say I am having 6, 3, -9. Third row के elements I am having 6, 10, -3. Now see, when I again try to print that matrix, ये पूरे के पूरे वैल्यू चेंज हो गए नए वैल्यूज से। -8, 7, -20, 6, 3, 9, 610 माइनस। इसका मतलब क्या है कि आप यूजर से इनपुट लेके मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाट द 2 डायमेंशनल एरेज आर। अब एक 3 डायमेंशनल एरेज कैसे रहेंगे? मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट?
एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने. सो 3 by 3 by 3. सो देखो यहाँ पे जो था, दिस वाज 3 by 3, so 9 elements were there. 3 by 4, 12 elements were there, right? Now in this case I am saying 3 by 3 by 2. मतलब क्या, 3 3s are 9, 9 2s are 18, so 18 एलिमेंट्स रहेंगे. so सबसे पहले तो क्या, ये वाला एरे है पूरा, राइट, जिसका नाम है मैट्रिक्स. अभी मैट्रिक्स के अंदर कितने और 3 एलिमेंट्स है. सो ये वाला एक एलिमेंट, दो और एक 3 एलिमेंट्स, राइट. नाउ हर एक एलिमेंट के अंदर बेसिकली वी हैव 2 by 2 के 3 एलिमेंट्स, राइट. सो 2 5 2 3 9 minus 12, right? 4 minus 8 2 13. So what does that mean? 3 by 2 के 3 matrices. 3 by 2 के कितने matrices? 3 matrices. See, this is one 3 by 2, this is another 3 by 2, and this is another 3 by 2. और 3 by 2 के कितने matrices है? 3. That's what it means by 3 dimension. अभी अगर 2 डायमेंशन एरेज के लिए अगर ट्रैवर्स करना है तो हमको फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगता है, तो यहाँ पे हमको 3 फॉर लूप लगेंगे. फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप. सो नंबर ऑफ रोज पे जाने के लिए एक फॉर लूप, उसके बाद सेकंड डायमेंशन पे इटरेट करने के लिए एक फॉर लूप, थर्ड डायमेंशन पे इटरेट करने के लिए और एक फॉर लूप. सिमिलरली अगर n डायमेंशनल एरे है तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए हमको n फॉर लूप्स लगेंगे. सो सी, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, मतलब ये 3 जो रोज है फर्स्ट डायमेंशन, वो नॉट रोज एक्चुअली फर्स्ट डायमेंशन. देन प्रिंट, just this is just a kind of maybe formatting I'm doing. Okay. Then for j is equal to 0, j less than 3, मतलब ये जो 3 है बाकी बाद में, right? Then for each k is equal to 0, k less than 2, मतलब ये वाला एक एक एलिमेंट, 1 2 3, इस तरह से. Then print matrix I j k. मैट्रिक्स आई जे के अगर मैं बोलूं मैट्रिक्स 2 1 1, तो ये एलिमेंट क्या आएगा, मैट्रिक्स का सेकंड रो. सो मैट्रिक्स का ये सेकंड, करेक्ट. उसमें से फर्स्ट, और फिर उसमें से फर्स्ट, और उसमें से और एक फर्स्ट, मतलब क्या 13. अगर हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए. सी, लेट मी जस्ट ट्राई टू प्रिंट इट, राइट. प्रिंट एफ, कंट्रोल जेड. when we try to print it, let's say %d, and this should basically give, let me just comment this out first before we run it. So it would give -9. Where is -9? Here. How? Let's see. So it says matrix का second row, ये 0th है, ये first है, so ये second है, correct. इस second में first का first, so इस second में ये 0th है, तो ये first हो गया, ये first का ये 0th है और ये first है, correct. That's why it is that. Now let's try to print it, the complete array. Let me skip these printfs so that you will come to know, right, what exactly it is trying to print. अगर हमने दोनों printf निकाल दिया, अगर फॉर्मेटेड आउटपुट नहीं लिया, तो देखो ये इस तरह से प्रिंट कर रहा है पूरे के पूरे एलिमेंट्स. लेकिन हमको ऐसे चाहिए क्या, नहीं. what we need is like this, right. हमें वो हर एक न्यू लाइन पे चाहिए. मैंने एक ही printf निकाला हुआ है, right, just now. so when I do that, it gives me like this. देखो पूरे 2 by 2 के जो मैट्रिसेस सीधे दे दिए. लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, I will also uncomment this. So when I uncomment this, it will give me properly this. See, first, second, third. Is it? So that's how arrays are. Multi-dimensional, two-dimensional, three-dimensional, multi-dimensional arrays are. Okay, let's go back to the slideshow now. So all these points we already saw. Okay.
Let's look at the strings now. What are the strings? So strings is basically a special type of array. It is a special kind of array of characters. अब तक हम लोगों ने एक array जो देखा है integers का देखा, floats का देखा, but we did not really deal with the array of characters. तो array of characters क्या होता है? Strings. अभी अगर आपको किसी का नाम लिखना है, राइट, अथर्व, अथर्व में कितने कैरेक्टर्स है? ATHARV. सो 6 कैरेक्टर्स आर देयर, राइट? सो 6 कैरेक्टर्स है. तो आप, अगर हमको अथर्व नाम स्टोर करना है तो हमें एक एरे लगेगा, कैरेक्टर का एरे लगेगा. लेट्स से कैरेक्टर नेम 6, देन वी विल से इज इक्वल टू ATHARV, इस तरह से. सो a special kind of array is an array of characters that ends with the null string. null string से end होता है, हम देखते हैं क्या होता है, राइट? A null character means it's a character which tells the compiler or the computer that this strings ends here. Okay. Now, how we declare the string, right? A string is declared as an array of characters like this. So what this is basically a yes is an array of 10 characters. Name is an array of 10 characters. Okay. So all the array properties apply to the string arrays as well. Arrays के जितने properties है, सभी properties string को भी apply होते हैं. Only difference क्या है कि ये there is a need to place a stored null character at the end. Okay. Now strings को हम जैसे इंटीजर्स को %d यूज करते हैं, कैरेक्टर्स को %c यूज करते हैं, फ्लोट्स को %f यूज करते हैं. सिमिलरली स्ट्रिंग्स को एक डिफरेंस है, स्ट्रिंग आप डायरेक्टली फॉर लूप न यूज करते हुए %s यूज करके प्रिंट कर सकते हो. आपको फॉर लूप की जरूरत नहीं है. सो देयर आर टू वेज कि आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो. डायरेक्टली यूज %s एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इन द प्रिंटफ या फिर स्कैनफ में एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर आप फॉर लूप यूज करो और %c के यूज करके सभी कैरेक्टर्स क्या करो, प्रिंट करो. ओके. नाउ before going to these, right, let's go back to the id and see what exactly the strings means, right? Or maybe yeah, yes. So here basically we have a program for the strings. So a string is nothing but the array of characters, right? Then the null character at the end of the string. Now let's take an example. See what here I'm taking str क्या है? एक कैरेक्टर एरे है. इसमें क्या क्या है? HELLO, हेलो करके एक स्ट्रिंग है जो str में मैंने स्टोर किया हुआ है. करेक्ट. तो जिस तरह से हम मार्क स्टोर करते हैं 1 - 4 6, उसी तरीके से मैंने क्या किया है, str में हेलो स्टोर कर दिया. राइट. सो मैंने बोला, राइट, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज दैट हमको अगर स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली %s यूज कर सकते हैं. सो स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट? %s. दैट इज व्हाट? योर str. सो हम यहाँ पे क्या है, str का वैल्यू डायरेक्टली %s से प्रिंट हो सकता है. अभी साइज ऑफ str क्या आएगा यहाँ पे? साइज ऑफ str विल बी व्हाट? 1 2 3 4 एंड 5. साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो हमको जिस किसी पे हम लोग अप्लाई करते हैं उसका साइज बताता है. So when you try to run it, it will basically tell you the string and its size. See, so now if you look at here, right, string is what? Hello, HELLO. Then size of the string is 5. Now you can also declare it. You can also print this using characters. Okay, let's not maybe have that because we generally don't use that way. अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप फॉर लूप लगाओगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर आप प्रिंट करोगे, प्रिंट है %c एंड देन str. ओके. i str i करके भी प्रिंट कर सकते हो. लेकिन लेट्स से हाउ अबाउट दिस, ये कैरेक्टर ए भी str है. नाउ दिस str हैज HELLO एंड यहाँ पे इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर. तो जनरली यहाँ पे क्या आना चाहिए? HER हेलो /0 AB ऐसे आना चाहिए, लेकिन नहीं.
जैसे ही उसको कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर मिल जाता है वो आगे का सब कुछ छोड़ देता है, ये वाला पूरा क्या इग्नोर कर देगा। तो एक्चुअली एसटीआर में क्या आएगा, ओनली हेलो आएगा। ओके, नाउ इट विल गिव एरर। क्यों, व्हाट इज द एरर? ये डुप्लीकेट हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है, 2 बार डिक्लेयर किया है। सो व्हेन यू रन इट, इट विल बेसिकली गिव यू सी हेलो, बट इसका साइज कितना दिया है, 8। साइज उसने पूरा काउंट किया, करेक्ट, बट उसने स्ट्रिंग देते वक्त हमको क्या प्रिंट किया, खाली हेलो। लेकिन अगर आप यहां से नल कैरेक्टर हटा दोगे तो वो 7 प्रिंट करेगा एंड कंप्लीट हेलो ए बी देगा हमको आंसर। ओके, सी, दिस इज हेलो ए बी। सो देर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ नल कैरेक्टर्स। ये नल कैरेक्टर मतलब क्या, दिए हुए स्ट्रिंग का एंड बताता है। ओके, नाउ हाउ टू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग, how to initialize a and declare and initialize a string, right? So that's how you can do that, right? You can basically use it like this। str यहाँ पे आपको डायमेंशन कितने एलिमेंट से देने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली 5 एलिमेंट्स ले लेगा। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, यू कैन बेसिकली गिव हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड एक्चुअल एलिमेंट्स। और आपको जनरली वी डोंट राइट लाइक दिस, वी कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, स्ट्रिंग हेलो। दिस इज द एडवांटेज। स्ट्रिंग्स में ये एडवांटेज है, आपको एरे के फॉर्मेट में ऐसा कुछ लिखना नहीं पड़ता। आपने डायरेक्टली लिख दिया हेलो, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट ये हो गया, दिस इज व्हाट इट मींस। ओके, इंटरनली क्या हो गया ये, दिस इज हाउ इट विल बी। यू कैन आल्सो से लाइक दिस। सो आप यहाँ पे जो डायमेंशन है ये देना है या नहीं देना है आपके ऊपर है, अगर यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किया है तो, राइट। सो यू कैन सिंपली से कैर एस टी आर हेलो। अभी हम अगर इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो हमको सेम आंसर देगा हेलो, right? So to print a string we use percent %s, remember, see percent %s, and that size is what, 6. So initialization can be done in one of these ways. Okay, now let's try to look at printing a string in different ways। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आप कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हो, राइट? वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप अगर हेलो को प्रिंट करना है तो आप फॉर लूप से प्रिंट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ एस टी आर आई प्लस प्लस, राइट। देन प्रिंट परसेंट सी एस टी आर आई, मतलब पहले एस टी आर 0 एच, एस टी आर 1 ई, एस टी आर 2 एल, ऐसे प्रिंट होगा, राइट। और यू कैन सिंपली यूज लाइक दिस एज परसेंटेज एंड एस टी आर, राइट। सो बोथ वेज यू कैन यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग। सी, सो ये फर्स्ट वाला है, we haven't used new line or anything there। in a second there is a new line and tab we have used, so that's how it is। okay, so इस तरीके से आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप और डायरेक्टली यूजिंग str। नाउ let's look at what exactly we can do with the strings। if we go back to this slideshow, right, so there are some inbuilt functions in C programming to deal with the strings। देखो अभी आपने अगर बोला आपका नाम है अथर्व और आपका सरनेम अगर है सोनवने, आपको अगर अथर्व और सोनवने को ज्वाइंट करना है, सो व्हाट यू बेसिकली डू, राइट, यू विल से कॉनकैटिनेट, राइट। तो आप कॉनकैटिनेशन का ऑपरेशन करोगे। अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो आप कॉपी का ऑपरेशन करोगे, राइट। आपको खाली लेट्स से एक स्ट्रिंग है उसमें से खाली 4 या 5 ही कैरेक्टर्स उठाने और किसी और स्ट्रिंग में कॉपी करने, तो आप एक अलग ऑपरेशन लोगे, राइट। अगर आपको किसी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो आपके पास वो ऑपरेशन होना चाहिए। अगर आपको दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं देखनी है तो उसके लिए क्या करना है। सो सी, देयर आर सम लाइब्रेरी फंक्शंस। ये लाइब्रेरी फंक्शंस कहाँ पे है, स्ट्रिंग डॉट एच में। आपको इसका पूरा डेफिनेशन या फिर लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सी लैंग्वेज में दिया गया है। सो आपको अगर इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना है तो आपको पहले स्ट्रिंग डॉट एच क्या करना है, उस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, राइट। सो वेयर द prototypes of these functions are given। now what is the first function, strcpy, dest source। ये क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी करता है, कहां से, सोर्स से डेस्टिनेशन में।
कॉपीज सोर्स स्ट्रिंग इनटू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। इसका हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। आई एम जस्ट मे बी फर्स्ट गोइंग थ्रू द थ्योरेटिकल स्टफ। strncpy, यहाँ पे strcpy में कंप्लीट सोर्स, अगर आपने यहाँ पे लिखा हेलो अथर्व सोनवने, हेलो अथर्व सोनवने, ऐसा पूरा लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो में अथर्व सोनवने कॉपी कर देगा। लेकिन अगर आपने बोला कि strncpy में अगर ओनली 6 कैरेक्टर्स आपको कॉपी करने हैं, तो आप ओनली बोलोगे कि यहाँ पे डेस्ट सोर्स और n, that will only copy the certain amount of characters from one string to another. strcat string 1 में string 2 कॉपी होगा, okay, so string 2 will be concatenated at the end of string 1. so अगर string 1 है abc, string 2 है xyz, तो इस ऑपरेशन के बाद string 1 हो जाएगा xyz abc। string ncat, इसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग कॉन्केटेंट होता है, इसमें खाली n पहले जो n कैरेक्टर्स कॉन्केटेंट होते हैं। strlen, ये क्या देखता है, लेंथ देता है, स्ट्रिंग का लेंथ हमको रिटर्न करेगा। अगर str1 है abc, तो ये वाला फंक्शन हमको रिटर्न करेगा 3, बिकॉज abc का लेंथ कितना है, 3। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ strcmp, इट्स बेसिकली str1 और str2 को कंपेयर करता है। कंपेयर मतलब क्या है, इक्वल है या नहीं है। नाउ str1, ये वाला फंक्शन 0 रिटर्न करेगा, अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं है तो नॉन जीरो रिटर्न करेगा, मतलब 0 रिटर्न नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द IDE, ओके, टू सी द एग्जांपल्स। सो यहाँ पे कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स से आई हैव स्ट्रिंग 1 में मेरे पास हेलो है, एंड स्ट्रिंग 2 में मेरे पास है अथर्व सोनवन। नाउ मुझे क्या है कि अथर्व सोनव ने इस स्ट्रिंग को str2 में कॉपी करना है, तो str2 मुझे हेलो नहीं चाहिए, राइट, हेलो नहीं चाहिए, str1 में str2 क्या हो जानी चाहिए, कॉपी हो जानी चाहिए। सो मैं सबसे पहले प्रिंट कर रहा हूँ कि str1 में क्या है, str2 में क्या है, कॉपी करने के पहले आई एम यूजिंग strcpy हियर। सो जो मैंने अभी बताया था, राइट, strcpy str1 str2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, str1 का वैल्यू हो जाएगा जो str2 में है, str2 में जो वैल्यू है वो str1 में कॉपी हो जाएगा। सो str1 का पहले का वैल्यू जो हेलो है वो चला जाएगा, और उसकी जगह पे आंसर आ जाएगा अथर्व सोनवने, इस तरह से। ओके, तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे str1 str2 सेम वैल्यूज, तो यहाँ पे दोनों जगह पे क्या प्रिंट होगा, अथर्व सोनवने ही प्रिंट होगा। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट होगा अथर्व सोनवने, यहाँ पे भी प्रिंट होगा अथर्व सोनवने, यहाँ पे अथर्व सोनवने प्रिंट होगा कि str2 है, और यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो, क्योंकि अभी हम लोगों ने strcpy किया नहीं है। करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो व्हेन आई रन दिस, सी दिस इज हाउ। सो पहले str1 में हेलो था, str2 में अथर्व सोनवने था, उसके बाद हमने str2 का पूरा वैल्यू str1 में कॉपी कर दिया, तो str1 का हेलो चला गया, str1 में आ गया अथर्व सोनवने, और str2 में भी अभी अथर्व सोनवने ही है। दिस इज हाउ यू कैन यूज strcpy। ओके, अभी लेट्स से मैंने एक बात बोली थी कि स्ट्रिंग डॉट एच आपको इंक्लूड करना है तभी रन होगा, अगर मैंने यहां से इसको निकाल दिया तो क्या होगा, इट विल नॉट रन। सी, strcpy was not declared in this scope। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं, कंपाइलर को पता ही नहीं चल रहा है कि strcpy का मतलब क्या है। अगर उसको, आपको अगर किसी ने ऐसा कुछ, ऐसे किसी लैंग्वेज में एक हाथ कोई सेंटेंस बोल दिया जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो आप क्या करोगे, यू से राइट। सो सिमिलरली कंपाइलर भी कंपाइलर भी वही कर रहा है, कंपाइलर को पता ही नहीं भाई इसका मतलब है क्या, तो वो करेगा क्या, तो कंपाइलर को बताने के लिए हमको इसको इंक्लूड करना है, ताकि उसको पता लग जाए कि भाई क्या है strcpy। ओके, सो सिमिलरली strcpy के बाद लेट्स नाउ ट्राई टू कॉपी ओनली पार्ट ऑफ इट, राइट। अभी हम जस्ट कॉपी करने की कोशिश करेंगे कुछ पार्ट, तो हमने इसको जस्ट मतलब
अनकमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लेट्स कमेंट अनकमेंट आउट, राइट। सेम है, सेम एग्जांपल ये है, हेलो अथर्व सोनवन है, फिर यहाँ पे मैं str1 str2 प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, strncpy यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया था, strcpy मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग कॉपी कर दो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई पूरा नहीं कॉपी करना है, ओनली 9 कैरेक्टर्स कॉपी करो। किसके, str2 के, str1 में। तो 9 कैरेक्टर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अथर्व एंड स्पेस एन एस ओ, इतना ही कॉपी का, ANAWANE ये कॉपी होगा नहीं। तो जब आप ये प्रिंट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इतना ही आएगा str1 में, राइट। लेकिन str2 में कितना आएगा, str2 में तो ऑलरेडी वही है, str2 को हम चेंज नहीं कर रहे, हम str2 से str1 में जस्ट कॉपी कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रिंट होते वक्त ऐसे आएगा, और ये वाला जो होगा, दिस वन वुड बेसिकली प्रिंट लाइक दिस। Okay, so when you try to run this part, it will only copy the 9 elements, not the complete C. Correct? ये देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, अथर्व सोनो ने प्रिंट हुआ, बाद में अथर्व SO प्रिंट हुआ, जस्ट क्योंकि 9 एलिमेंट्स ओनली, एंड देन STR2 को तो हमने टच ही नहीं किया ना। सो दैट्स हाउ इट इज, करेक्ट। So this is how you can just copy either part of it or complete string. Okay. Now let's look at the next part. When we say concatenate the complete string, मतलब एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट मतलब क्या, एक स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग कॉपी कर दो। अगर str1 है abc, str2 है xyz, तो अगर मैं strcat यूज करता हूं, strcat, राइट, str1 str2, ये क्या कर देगा, str1 को abc और xyz बना देगा। मतलब क्या कि str1 में ऑलरेडी abc है, abc को str2 ऐड कर दो, तो xyz ऑलरेडी था, उसको ऐड कर दो xyz उसमें, तो abc xyz हो गया, राइट। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी क्या है ना कि आई हैव टू स्ट्रिंग्स, मेरे पास हेलो करके एक स्ट्रिंग है, अथर्व सोनवने करके एक स्ट्रिंग है, और मेरे पास एक तीसरा वाला स्ट्रिंग है। अभी मुझे क्या करना है कि मैंने पहले तो सभी तीनों के तीनों स्ट्रिंग प्रिंट कर दिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ तो प्रिंट होगा हेलो, करेक्ट। यहाँ यहाँ पे प्रिंट होगा अथर्व सोनवने, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट होगा लेट्स से हेलो, यहाँ पे प्रिंट होगा अथर्व सोनवने, करेक्ट। यहाँ पे पता नहीं क्या प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कुछ इनिशियलाइज किया ही नहीं है, लेकिन हमको इनिशियलाइज करना चाहिए, राइट। सो सिमिलरली सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं strcat, str3 में क्या करो, str1 को क्या कॉन्केटेनेट करो, मतलब str3 में str1 को अपेंड करो, राइट। सो str3 कौन सा है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो हेलो, तो ये हेलो आ जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं अगेन वी आर सेइंग strcat, म्हणजे कॉन्केटिनेट करो, मतलब अपेंड करो, किसको, str3 को, किससे, str2 से। सो str2 क्या है अभी, अथर्व सोनवन है, करेक्ट। सो ये जो है ये इस तरह से आ जाएगा, अथर्व सोनवने। सो हेलो अथर्व सोनवने करके str3 में आ गए। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू रन इट। सो इफ वी रन दैट, व्हाट इट बेसिकली गिव्स, सी, तो इसने हेलो प्रिंट किया, करेक्ट है। अथर्व सोनू ने प्रिंट किया, लेकिन यहाँ पे str3 हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया था, इसलिए उसने गार्बेज वैल्यू लिया। दिस इज कॉल्ड एज गार्बेज वैल्यू, कचरा बोलते हैं उसको, गार्बेज वैल्यू, राइट। सो दैट्स व्हाई द गुड प्रैक्टिस क्या है कि आपको कभी भी कोई भी अगर वेरिएबल आप लेते हो तो इसको इनिशियलाइज किया करो, राइट। उसके बाद हेलो, करेक्ट, देन अथर्व सोनवने,
यहाँ पे क्या है, जो भी str3 रहेगा उसको हेलो अपेंड हो जाएगा। सो ये वाला str3 था, इसको हेलो अपेंड हो गया। उसके बाद हेलो अथर्वसनोने, ये जो str3 था उसको str2 भी अपेंड हो गया। सो देखो हेलो अथर्वसनोने। अभी ये वाला जो गार्बेज वैल्यू कैसे निकालना है, इसको आप निकाल सकते हो इस तरीके से। तो इसे आप नल स्ट्रिंग से क्या करो, असाइन कर दो, मतलब इसमें कुछ नहीं है इसका मतलब। तो जब आप इसको रन करोगे तो वो आ जाएगा करेक्ट वैल्यू। सी, पहले अथर्व हेलो अथर्व सोनो ने एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 3 में कुछ नहीं था, तो स्ट्रिंग 3 में हमने स्ट्रिंग 1 को पहले अपेंड करवा दिया हेलो, फिर स्ट्रिंग 3 में स्ट्रिंग 2 को भी अपेंड करवा दिया, तो हेलो अथर्व सोनो ने। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, strcat यूज कर सकते हो। ये हो गया strcat, अगर आपको कंप्लीट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करना है तो। लेकिन अगर आपको ओनली फ्यू कैरेक्टर्स कॉन्केट करने दो ना, पूरे के पूरे नहीं, मुझे अथर्व कंप्लीट ये नहीं बोलना है कि अथर्व हेलो अथर्व सोनोमन, ऐसे नहीं, मुझे इस बोलना है कि हेलो अथर्व। तो मैं क्या करूंगा, सो दिस विल बी सेम, राइट। let maybe just copy me the complete this one only, right? Why would waste the time, maybe, to write all these things here, right? See, so what I exactly I want to do, I will now remove this part from here, let's say, because that will be duplicate. Yeah. So see, I want to concatenate the hello for sure. So मैंने strcat यूज किया यहाँ पे। लेकिन अथर्व सोनोने में से मुझे पूरा का पूरा ऐड नहीं करना वहां पे, मुझे जस्ट ये 5 कैरेक्टर्स और ये 6 कैरेक्टर्स ही ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, strncat, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ओनली 6। सो अभी ये पूरा का पूरा अथर्व सोनोने नहीं, ओनली अथर्व तक ही आएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो it will basically give me like this. Now see, earlier it was Atharva Sonavane, now it says hello Atharva. Okay, so that's how it is when you want to only concatenate the certain number of elements. Now let's look at how to compare the two strings. So let's see, str1 hello, right? इसको निकाल देते हैं, let's say, right, hello, and str2 में भी क्या hello है। अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, str1 इक्वल टू str2। देखो जब हम हमारे पास दो इंटीजर्स होते तो इंटीजर्स को हम इस तरह से इक्वल टू करते थे, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू डू दैट, str1 इक्वल टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अभी मुझे बताओ यहाँ पे अगर हेलो 1 लिख दिया मैंने, ये दोनों के दोनों इक्वल है क्या, नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, करेक्ट। सो लेट्स मे बी सी, आर वी गेटिंग स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, यस, करेक्ट, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल वी आर गेटिंग। बट लेट्स से नाउ आई रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर, सो अभी क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग्स आर इक्वल आना चाहिए, करेक्ट। तो देखते हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल आता है या नहीं आता है। इट गिव द सेम थिंग, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्यों, सी। सो जब आप इंटीजर्स फ्लोट्स के साथ डील करते हो तो यू एक्चुअली डील डायरेक्टली विद द वैल्यूज, लेकिन आप जब स्ट्रिंग्स के साथ डील करते हो या फिर एरेज के साथ डील करते हो, एरे का नाम मतलब क्या होता है कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस। इसीलिए आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो कि str1 का एड्रेस और str2 का एड्रेस सेम है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि str1 और str2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, दोनों अलग अलग घर में रहने वाले हैं, राइट। हो सकता है कि दोनों घर में एक ही नाम के लोग रहते होंगे, बट दोनों घर अलग है, दोनों इंसान अलग है, राइट। सो बोथ स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई ये सही नहीं है। तो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं strcmp। strcmp मतलब क्या, स्ट्रिंग्स कंपेयर करो, कौन कौन से स्ट्रिंग कंपेयर करनी है, str1 और str2 को कंपेयर करो, और अगर ये दोनों कंपेयर करके इक्वल है तो रिटर्न क्या आएगा हमारे पास, जीरो। अगर इक्वल टू नहीं है तो हमारे पास जीरो नहीं आएगा। अभी देखो मैंने हेलो हेलो रखा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ। सो इट शुड बेसिकली गिव मी, सी, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, करेक्ट। नाउ हम एक सिंपल एक काम करके देखते हैं, इसको हेलो वन करके देखते हैं,
करेक्ट, तो अभी इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इट शुड बेसिकली गो इन द एल्स पार्ट. So when we run it, say it says strings are not equal. Correct. So अगर आपको strings का कंपैरिजन करना है तो use strcmp जो 0 रिटर्न करता है. Okay, understood? So that's how it is. Okay, this is how you can deal with the strings. Let's go back to the presentation. Yeah. So I hope now you got you got to know what are all these functions mean: strcpy, strncpy, strcat, strncat, strlen, and strcmp. So that's all I had in this video. But what all topics are yet to be covered in C language? जो हमारा सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स हम कर रहे हैं उसमें अभी कितने और टॉपिक्स बाकी है? हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग. तो अभी 6 टॉपिक्स बाकी है. पॉइंटर्स बाकी है, स्ट्रक्चर्स बाकी है, यूनियंस बाकी है, फंक्शंस बाकी है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बाकी है, फाइल ऑपरेशंस बाकी है. So there will be 6 more videos on C programming language which will conclude the C programming course. So next 15 days हम लोग C programming course खत्म कर देंगे. Once C programming course ends, we will start with 2 more courses in the programming world. And those are like Python programming language, Python programming and the data structures with C. मतलब जैसे ही सी प्रोग्रामिंग का कोर्स खत्म हो जाएगा हम और 2 प्रोग्रामिंग पे काम करना शुरू कर देंगे. पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी. डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी मतलब कौन सा? arrays, linked list, queues, stack, graphs, trees, okay, all that stuff हम लोग उस पे काम करना शुरू कर देंगे. सर्कुलर क्यूज एंड ऑल. सो in the current series, in next video we'll basically cover the pointers, right? So guys, thank you for watching this video. If you like the contents, do share with your friends or students or kids who are willing to learn C language. So we are here to spread a knowledge and build people technically. So please do not forget to like, subscribe and share if you haven't done so. Happy learning with the GravityTech. See you in the next video. Thank you.